Good morning students, this is your biology class and today we will discuss about the chromosomal mutation. In our earlier video I have discussed about the mutation and the mutagens and genomatic mutation. Today we will discuss about chromosomal mutation. What is chromosomal mutation? Change in structure or shape of chromosome. If there is a change in structure or shape of the chromosome, not chromosome number. Okay, so we have discussed the chromosome number change in the genomatic mutation. If there is a change in shape or structure of the chromosome, then it will be say chromosomal mutation. Okay, third is gene mutation. So today I will discuss about chromosomal mutation first. What is chromosomal mutation? Is there is change in the shape and structure of the chromosome, then it is said chromosomal mutation. Number will be fixed. There is no variation in the number of the chromosome. There is no change in the number of chromosome. It has been happened in the genomatic mutation. So structure and shape of chromosome change, then it is said chromosomal mutation. There are two types of chromosomal mutation. First is intrachromosomal mutation, second is interchromosomal mutation. What is intrachromosomal mutation? When there is a change in the shape and structure of the same chromosome. Okay, in any chromosome there is a change in the shape structure of same chromosome, then it is called intrachromosome. You have learned about the inter class competition and intra class competition. When there is a competition between the students of same class, then it is said intrachromosomal. If there is competition between the two different class, first is 12th class and second is 11th class, then it will be said that interchromosomal means inter class competition. So like this, there is intrachromosomal and interchromosomal type of mutation. So intrachromosomal, when there is a deficiency deletion, there are three types of intrachromosomal mutation, that is deficiency, deletion and inversion. Okay, deficiency means loss of terminal part. If there is loss of terminal part is broken down, then it will be say deficiency type of intrachromosomal mutation. Clear? If there is loss of middle part. Okay, when there is a loss of middle part of the chromosome, then it is said deletion. And what is inversion? The inversion, the piece of the chromosome attached rotately and on that particular chromosome, then it is said inversion. इसी का पीस इसी के ऊपर उल्टा होकर लग जाता है, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम का पीस उसी के ऊपर अटैच हो जाता है टूट के, तब उसे इन्वर्जन कहा जाता है। इन्वर्स हो गया, ठीक, इन्वर्स हो गया। देखो क्या पढ़ा हमने क्रोमोसोमल में? क्रोमोसोमल दो तरीके का होता है, इंट्रा क्रोमोसोमल, इंटर क्रोमोसोमल। अब हम इंट्रा क्रोमोसोमल के टाइप पढ़ना है, जिसमें कि डेफिशिएंसी, डिलीशन और इन्वर्जन है। डेफिशिएंसी में क्या होता है? जब टर्मिनल पार्ट टूटता है क्रोमोसोम का, उसे डेफिशिएंसी कहते हैं। जब मिडल पार्ट टूटता है तो उसे डिलीशन कहते हैं, और जब उसी का पार्ट उसी के ऊपर लग जाता है उल्टा होके, तब उसे इन्वर्जन कहते हैं। तो ये है इंट्रा क्रोमोसोमल, जब एक ही क्रोमोसोम में चेंज आता है। जब एक से ज़्यादा, दो के बीच चेंज आता है, तब उसे इंटरक्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। इंटरक्रोमोसोमल भी दो तरीके का है, इंसर्शन और ट्रांसलेशन। इंसर्शन मीन्स ऐड होना, ठीक है, किसी भी क्रोमोसोम का, किसी एक क्रोमोसोम का पार्ट टूट के किसी दूसरे क्रोमोसोम पर लग जाता है। दूसरे क्रोमोसोम कौन सा? होमोलोगस क्रोमोसोम। मीन्स जैसे कि एक पेयर होता है क्रोमोसोम का, ठीक है, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर होता है, तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर में से पहले वाले क्रोमोसोम का हेड या फिर कोई भी पार्ट टूट के दूसरे वाले उसी क्रोमोसोम के पेयर पे लग जाता है, तब उसे कहते हैं इंसर्शन, ठीक। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? जब एक होमोलोगस पेयर में से पहले क्रोमोसोम का कोई पार्ट टूट के किसी और पेयर के क्रोमोसोम पे लग जाता है, उसी क्रोमोसोम पे नहीं लगता, होमोलोगस क्रोमोसोम के पे नहीं लगता, किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे उसका हेड या फिर कोई भी पार्ट टूट के उससे अटैच हो जाता है, तब उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ये है क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने म्यूटेशन पढ़ा। म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल,
सडन चेंज किसी में भी, जीन में, जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में या फिर क्रोमोसोम में, उसे म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन 3 तरीके का होता है, जीनोमेटिक, क्रोमोसोमल और पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन। जीनोमेटिक में जब पूरा सेट कम हो जाता है या फिर कुछ नंबर कम हो जाता है क्रोमोसोम का, तब उसे जीनोमेटिक म्यूटेशन कहते हैं। जब पूरा सेट कम हो जाता है उसे क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी हो जाता है, सेट कम हो जाता है या फिर सेट बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। फिर एन्यूप्लॉइडी में क्या है, देयर इज़ अ लॉस और गेन ऑफ फ्यू क्रोमोसोम। जब कुछ मतलब एक या फिर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का लॉस या फिर गेन होता है उसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। पॉलीप्लॉइडी में एक सेट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पॉली मतलब बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा हो जाना। जैसे कि 2n कंडीशन होती है तो 3n कंडीशन आ जाएगी या 4n कंडीशन आ जाएगी, पूरा सेट इंक्रीज हो जाता है, तब उसे पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। कॉल्चिसिन डाई क्या होती है, जो कि मेटाफेज स्टेज को रोक देती है, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होने देती और म्यूटेशन कॉज हो जाता है जिसकी वजह से। एन्यूप्लॉइडी क्या है, जब एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा मोनोसोमिक। मोनोसोमिक में क्या होता है, एक का लॉस हो जाता है, तब उसे मोनोसोमिक एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। नलीसोमी में एक पेयर का लॉस हो जाता है, 44 क्रोमोसोम रह जाते हैं 46 में से, अगर हम बात करें ह्यूमन क्रोमोसोम की तो। फिर ट्राइसोमी में क्या होता है, एक क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है, एक बढ़ता है ना कि सेट बढ़ता है, तो 46 से 47 हो जाते हैं। टेट्रासोमिक एग्जिस्ट नहीं करती, उसमें 4 नंबर बढ़ जाते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या पड़ा, 2 तरीके का होता है, इंट्रा क्रोमोसोमल, इंटर क्रोमोसोमल। इंट्रा जब एक ही क्रोमोसोम के बीच मतलब एक ही क्रोमोसोम में चेंज आ जाता है तब उसे इंट्रा क्रोमोसोमल कहते हैं। इसमें हमने डेफिशिएंसी, डिलीशन और इंसर्शन पढ़ा। डेफिशिएंसी में जब उसका टर्मिनल पार्ट टूट जाता है, डिलीशन में जब उसका मिडल पार्ट टूटता है, इन्वर्जन में जब उसी की मुंडी उसी के ऊपर उल्टे होकर लग जाती है, उसी क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है उसी के ऊपर घूम के लग जाता है, उसे कहते हैं इन्वर्जन। इंटर क्रोमोसोमल क्या होता है, जब 2 अलग अलग क्रोमोसोम के बीच में कुछ मतलब एक्सचेंज होता है या फिर ऐड होता है कुछ, तो फिर उसे क्या कहते हैं, इंटर क्रोमोसोमल। इंटर क्रोमोसोमल में इंसर्शन, जब एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर में से एक क्रोमोसोम की मुंडी टूट के दूसरे के ऊपर लग गई है, ठीक है, इसी तरीके से डायग्राम बनाए, याद इससे अच्छे से रहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, इंसर्शन कहेंगे। जब एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर में से एक क्रोमोसोम की मुंडी टूट के दूसरे क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर लग जाती है उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ये हो गया इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। फिर है जीन म्यूटेशन, जो थर्ड टाइप का म्यूटेशन है वो है जीन म्यूटेशन। ठीक है, जीन म्यूटेशन क्या होता है, जैसे कि अगर हमें पता है क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए को हमने बाहर खींच के निकाल लिया, ठीक है, उसमें क्या होता है, डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस लगे होते हैं। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, शायद हम लोग को पता हो पहले से, प्यूरिन और पिरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। प्यूरिन में क्या क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन 2 होते हैं, और पिरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 4 होते हैं। नाइट्रोजन बेस की 2 कैटेगरी हैं, एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन। प्यूरिन एडेनिन ग्वानिन, पिरिमिडीन साइटोसिन थाइमिन। इफेक्ट ऑन क्रोमोसोम और शेप और नंबर, नो इफेक्ट। जीन म्यूटेशन में क्या होता है, केवल जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियर बेस हैं, ठीक है, नाइट्रोजन बेस जो है पेयर है वो बदल जाता है, उनका सीक्वेंस बदल जाता है। इस जीन म्यूटेशन में उसके क्रोमोसोम के नंबर पे, उसके शेप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो बदल जाता है जीन म्यूटेशन में। जीन म्यूटेशन भी 2 तरीके का है, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, वो भी 2 तरीके का हो सकता है, ट्रांसवर्शन और ट्रांजिशन। ट्रांसवर्जन क्या है, सिर्फ एक पॉइंट पर बेस पेयर या म्यूटेशन हुई है, नया बेस पेयर है, सिंगल बेस चेंज होगा तो उसे पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। पॉइंट क्या होता है, जैसे एक सिंगल पॉइंट पे कोई चीज़ चेंज हो जाए, मीन्स जैसे कि जो डीएनए है हमारा, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, इन सब से नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना है, तो जहाँ पे एडेनिन आना चाहिए था वहाँ पे थाइमिन आ गया, या फिर जहाँ पे साइटोसिन आना चाहिए था वहाँ पे ग्वानिन आ गया, ठीक है, दूसरा नाइट्रोजनस बेस पेयर आ गया, तो उस पॉइंट पे म्यूटेशन हो गया, ठीक है, उस जगह पे म्यूटेशन हो गया। इसी तरीके के म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। तो पॉइंट म्यूटेशन 2 तरीके का है, एक ट्रांसवर्जन एक ट्रांजिशन। अब हमने तो ऊपर बताया नाइट्रोजन बेस 2 तरीके का होता है, एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन। प्यूरिन एडेनिन ग्वानिन को कहते हैं और पिरिमिडिन साइटोसिन थाइमिन को कहते हैं। लेकिन जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए में क्या होता है, जो एडिशन होता है वो एडेनिन का थाइमिन से होता है और ग्वानिन का साइटोसिन से होता है। जैसे कि ये देखो, जैसे इसमें क्रॉस लगा रखा है, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से
जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके अटैचमेंट में काम करते हैं। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन से अटैच होगा और ग्वानिन साइटोसिन से। अब जो ट्रांसवर्जन है उसमें क्या होता है, साइटोसिन अगर थाइमिन से रिप्लेस हो तो ट्रांजिशन कहेंगे, प्यूरिन से प्यूरिन रिप्लेस हो और पिरिमिडीन से पिरिमिडीन रिप्लेस हो। अगर थाइमिन से रिप्लेस हो, देखो साइटोसिन अगर थाइमिन, देखो साइटोसिन थाइमिन किसका पार्ट है, पिरिमिडीन का, दोनों पिरिमिडीन हैं, ठीक है, दोनों पिरिमिडीन हैं। तो अगर पिरिमिडीन पिरिमिडीन से हो और प्यूरिन प्यूरिन से बदले, जैसे कि एडेनिन और ग्वानिन जो है क्या है, प्यूरिन है, जैसे एडेनिन की जगह ग्वानिन आ गया, मीन्स प्यूरिन की जगह प्यूरिन ही आया, ना कि पिरिमिडीन आया, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या है, प्यूरिन की जगह प्यूरिन ही आ रहा है, पिरिमिडीन की जगह पिरिमिडीन ही रिप्लेस हो रहा है, तो उसे कहेंगे ट्रांजिशन। और ट्रांसवर्जन क्या होता है, जब प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडीन एंड वाइस वर्सा, मीन्स एडेनिन ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है, तो ग्वानिन की जगह थाइमिन आ गया, मीन्स ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है, और टी क्या है, थाइमिन, पिरिमिडीन है, ठीक है। तो उसकी जगह क्या आ गया, ग्वानिन की जगह थाइमिन आ गया, साइटोसिन की जगह एडेनिन आ गया। तो जब प्यूरिन पिरिमिडीन से रिप्लेस होता है या फिर पिरिमिडीन प्यूरिन से रिप्लेस होता है तब उसे कहते हैं ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन, ट्रांसवर्स हो गया, बिल्कुल कहते नहीं किसी का ट्रांसवर्जन हो गया, मीन्स बिल्कुल चेंज हो गया। तो एडेनिन इसमें क्या होता है, प्यूरिन पिरिमिडीन से बदलता है, पिरिमिडीन प्यूरिन से बदलता है, तो उसे ट्रांसवर्जन कहते हैं। ट्रांजिशन क्या होता है, जब प्यूरिन की जगह प्यूरिन ही आए दूसरा, पिरिमिडीन की जगह पिरिमिडीन ही आए दूसरा, तब उसे कहते हैं ट्रांजिशन। तो ये पॉइंट म्यूटेशन का टाइप है। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, जब किसी एक पॉइंट पे किसी एक नाइट्रोजन बेस में चेंज आ जाता है उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। अब जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन, नाम याद रखने हैं। प्यूरिन कौन से, एडेनिन ग्वानिन, पिरिमिडीन कौन से, साइटोसिन थाइमिन। तो जब प्यूरिन प्यूरिन से बदले, पिरिमिडीन पिरिमिडीन से बदलता है म्यूटेशन में, तो उसे ट्रांजिशन कहते हैं। और जब प्यूरिन पिरिमिडीन से बदलता है, पिरिमिडीन प्यूरिन से बदलता है, तब उसे ट्रांसवर्जन कहते हैं। तो ये है जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, जीन म्यूटेशन, क्योंकि एक जीन बदल गया, एक जीन कन्वर्ट हो गया। फिर देखो फ्रेम शिफ्ट क्या है, फ्रेम इसका एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का सिकल सेल एनीमिया। इसमें देखो क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो GAG है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड इसमें बनना चाहिए था जो सिकल सेल एनीमिया में, लेकिन बन क्या जाता है, वैलीन, वैलीन बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो एडेनिन है, यहाँ पे तो RNA बनता है ना, देखो DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनती है, ठीक है। RNA में तुम्हें पता है या नहीं पता है, तो देखो इसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, जो नाइट्रोजनस बेस है वो यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्यूरिन, जो ग्लूटामिक एसिड में उसमें प्यूरिन आता है, एडेनिन, तो जब लेकिन इसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या बन जाता है, वैलीन बन जाता है। और वैलीन का जो फॉर्मूला है वो GUG है, मीन्स जो बनना चाहिए था वो नहीं बना, तो क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो म्यूटेशन जो है, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हमारी RBC है वो सिकल शेप्ड हो जाती है, इसी वजह से, क्योंकि उसमें वैलीन बन जाता है, बनना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड लेकिन बन जाता है वैलीन। फ्रेम शिफ्ट देख लो क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट में जब उसका पूरा फ्रेम बदल जाए, मीन्स देखो आगे हम लोग जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, ठीक है, तो जो भी हमारा टेम्पलेट DNA होता है, टेम्पलेट DNA क्या होता है, जिससे कि बाद में RNA बनता है, उसे टेम्पलेट DNA कहा जाता है। तो एक सीक्वेंस का एक पैटर्न होता है DNA पे, ऐसे ही नहीं कुछ भी कभी भी कोई भी आ जाएगा। तो जैसे मान लिया कि इसमें ये दिया है ATCC-GA, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन साइटोसिन, ठीक है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब उससे जो RNA बनेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। हर 3 नाइट्रोजन बेस एक प्रोटीन के लिए कोड करता है। एक जो जेनेटिक कोड होता है ना वो 3-3 का सेट होता है, 3 नाइट्रोजनस बेस का सेट होता है, जिसे कि जेनेटिक कोड कहा जाता है। DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनती है अल्टीमेटली। तो जो प्रोटीन बनेगी उसको
कंट्रोल कौन करता है? डीएनए ही कंट्रोल करता है कि कौन सी प्रोटीन किस सेल में बनेगी। ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? जब जैसे कि मान लो कि ये एक सिस्टम है पूरा, ठीक है, ATC CAG ATA CC, बिल्कुल अलग कोडॉन है। अब हम इसमें कोई एक कोडॉन ऐड कर दें या फिर माइनस कर दें, ठीक है। एक मान लो कि किसी एक नाइट्रोजन बेस का ऐड हो गया या फिर एक लॉस हो गया, तो क्या होगा? पूरा फ्रेम ही बदल जाएगा, पढ़ने का तरीका ही बदल जाएगा उसको, तब उसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। फ्रेम शिफ्ट जब जो कोडॉन है डीएनए में या फिर आरएनए में वो बिल्कुल चेंज हो जाए और उसका पूरा फ्रेम बदल जाए, बिल्कुल आगे का जो बनना है वो सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा, तो उसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी दो तरीके का, इंसर्शन और डिलीशन। इंसर्शन मीन्स किसी भी नाइट्रोजन बेस का ऐड हो जाना, इंसर्ट हो जाना, इंसर्ट से बना है इंसर्शन। डिलीशन मीन्स जब किसी भी चीज़ का कम हो जाना या एक नाइट्रोजनस बेस का कम हो जाना, उसे कहते हैं डिलीशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक ये सीक्वेंस है, ये हम मतलब NCERT में मेंशन है कि राम हैज़ रेड कैप, तो एक मीनिंग बनना है इसका, राम RAM, राम HAS। इसी तरीके से कोडॉन जो होते हैं उनका एक मीनिंग होता है, उसी वो tRNA उसको रीड करता है। अब यहाँ पे जो कोडॉन है, ठीक है, जेनेटिक कोड है, वही बदल जाएगा तो आगे का पैटर्न ही सब बदल जाएगा, tRNA उसको कोड ही नहीं कर पाएगा। सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है? दो तरीके का होता है, इंसर्शन और डिलीशन। इंसर्शन में जब कोई भी नाइट्रोजन बेस एक ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, तब उसे इंसर्शन कहते हैं। जैसे कि राम हैज़ रेड कैप है, मतलब ये कोडॉन है, अब उसमें हमने T ऐड कर दिया R और A के बीच में, तो क्या हो जाएगा? उसका सीक्वेंस ही गड़बड़ हो जाएगा। अब हम नया सीक्वेंस बनाएंगे 3 कोडॉन का, तो क्या बनेगा? RTA MHA इस तरीके से, और आगे P लेफ़्ट ओवर रह जाएगा। तो यहाँ पे देखो पूरा सीक्वेंस बदल गया ना, आगे की कोडिंग डिस्टर्ब हो गई पूरी, जो कि पहले से सेट थी वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई। तो किसी भी जेनेटिक मटेरियल में या फिर जेनेटिक कोड में जब हम किसी नाइट्रोजन बेस को ऐड कर देते हैं या माइनस कर देते हैं, ठीक है, लॉस कर देते हैं या लॉस हो जाता है, कर क्या देते हैं मतलब म्यूटेशन क्या हो जाता है खुद से, किसी भी रीज़न से, म्यूटाजेन से। अब जैसे डिलीशन क्या है? नाइट्रोजन में बेस कोड मान लो, जैसे राम हैज़ रेड कैप है, तो हम इसका डिलीशन कर दें, कोई एक करेक्टर उसे लॉस कर दें, मान लो H निकाल दिया, तो क्या बनेगा? RAH ASR, इस तरीके से सीक्वेंस बनेगा 3 का जो पेयर बना रहे हैं हम। तो क्या होगा? पूरा रीडिंग क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी, उसका फ्रेम बिल्कुल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एक कम करने से भी चेंज हो गया, एक ऐड करने से भी पूरा चेंज हो गया। नो मीनिंग ऑफ सेंटेंस, कोई भी मीनिंग नहीं रह गया सेंटेंस का, तब इसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या है? जब किसी नाइट्रोजन बेस को ऐड करने पे या फिर उसको डिलीशन करने पे उसका पूरा फ्रेम बदल जाता है, उसका पढ़ने का तरीका ही बदल जाए, पूरा फ्रेम ही डिफरेंट हो जाए, तब उसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो कि जीन म्यूटेशन का ही एग्जाम्पल है। जीन म्यूटेशन क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल पे, जीन लेवल पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जीन म्यूटेशन में हमने क्या पढ़ा? पॉइंट म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट। पॉइंट म्यूटेशन दो तरीके का, ट्रांसवर्शन और ट्रांजिशन। ट्रांसवर्जन क्या है? जब प्यूरिन पिरिमिडीन से एक्सचेंज हो, पिरिमिडीन प्यूरिन से एक्सचेंज हो, तब उसे ट्रांसवर्जन कहेंगे। ट्रांजिशन जब प्यूरिन प्यूरिन से ही बदले, पिरिमिडीन पिरिमिडीन से ही बदले। फ्रेम शिफ्ट में क्या है? जब किसी भी नाइट्रोजन बेस के ऐड करने पे या फिर माइनस करने पे उसका फ्रेम बदल जाता है, तब उसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन तुम लोग का यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आई होप, और ख़त्म भी हो गया है म्यूटेशन, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे, जो कि ह्यूमंस में हम लोग देखते हैं कि कैसे होती है, उसके क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेडिग्री एनालिसिस का। अगर तुम कोई भी डाउट हो तुम लोग को इसमें, तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू, बाय।